नमस्कार भाई दोस्तों। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से एक खुशखबरी आई है। वो खुशखबरी भी आपको बताएंगे। सबको पता है वहाँ कौन सा केस चला हुआ है, जिस केस का मार्च अप्रैल में इतना वो हुआ था। अब उस केस में जब खुशखबरी आ रही हैं तो कोई नहीं बता रहा कि ये खुशखबरी भी आ रही है। उससे पहले एक चीज़ का आपको बार बार याद दिलाते रहे हैं कि भाई इलेक्शन आ रहा है 2024 का। इस इलेक्शन में कुछ भी कर सकते हैं, आपको ही पता है, सबको पता है। SYL का मुद्दा फिर उठ गया है। SYL के मुद्दे को सबसे पहले उठाने में भगवंत मान साहब थोड़ा आगे पार्ट ले रहे हैं। वो SYL का मुद्दा उठाएंगे। SYL और चंडीगढ़ ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हरियाणा और पंजाब को आपस में लड़वाया जाता है। क्या किसी को पता है पहले हरियाणा के स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जाती थी, कंपलसरी थी पंजाबी। सरकारी स्कूलों में कंपलसरी पंजाबी पढ़ाई जाती थी। उसको हटवा के तमिल, कोई बोलता है हरियाणा के अंदर तमिल, तमिल को हरियाणा की ऑफिशियली लैंग्वेज बना दिया गया था 40 सालों तक। किस लिए बनाया गया था? उसका रीजन ये था कि कहीं दोबारा फिर हरियाणा पंजाब एक ना हो जाए। अगर पंजाबी लिखे पढ़ेंगे तो फिर वे अपनी भाषा का वो करके फिर एक हो जाएंगे, इसलिए बनाई गई थी। किसने बनाया था? थोड़ा सुनना ध्यान से। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ। 21 ਮਈ 1968 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਬੰਸੀ ਲਾਲ, ਅਤੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਚਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1969 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2004 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 7.11% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ पता लगा खेल कैसे कैसे खेलते हैं नेता। नेताओं के खेल आपकी कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएंगे, कभी नहीं समझ पाओगे। अब बताते हैं वो खुशखबरी क्या है भाई। पूरा चलाया था मार्च अप्रैल में, मतलब यहाँ देखा वहाँ देखा। आप सबको पता है, सबको पता होगा जो इन लोगों ने किया था। ठीक है, तो लो बता देते हैं एक बार। वो खुशखबरी भी आपको बतानी बहुत ज़रूरी होगी है, क्योंकि इन लोगों ने तो जो किया था ना, बीबी बलवीर कौर पटियाला वाले, बताया था ना कि पटियाला में उसके घर पे देखा गया था, अमृतपाल ने उसके घर पे जगह शरण ली थी। और बीबी बलजीत कौर शाहबाद हरियाणा, हरियाणा से भी उनको उठा के लेकर गए थे, सबको याद होगा ना, जिन पर अमृतपाल सिंह और पप्पलप्रीत को शरण देने के आरोप थे। उनको माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने जमानत दे दी है भाई। अब जमानत क्यों मिली है ये सबको पता है। जमानत इसलिए मिली है कि कोई सबूत पेश नहीं कर पाई सरकार। सरकार के पास कोई भी सबूत नहीं था, प्रूफ नहीं था। 2 बार पेशी अमृतपाल की भी लग चुकी है। अभी तक जो पंजाब की सरकार है, पंजाब की सरकार कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। वो बोल रहे बस हमारे को तो ना इनके बारे में ऐसे ऐसे चर्चा मिली थी, सबूत किसी के पास भी नहीं है। कहीं कोई सोच रहा हो किया क्या भाई उसने? कोई एक तो ये बता दो भाई ये गलत काम किया था उसने, इसलिए नशे लगा रखे यार, इसलिए वहाँ डाल रखे हैं। बच्चों का नशा छुड़वा रहा था, ये गलत काम किया था। बच्चों को गुरु के नज़दीक लगा रहा था, ये गलत काम किया था। ये सोचना पड़ेगा लोगों को। और लोग जब तक इकट्ठे नहीं हो जाते अपने एक निशान साहब के झंडे के नीचे, जब तक इकट्ठे नहीं हो जाते ना, तब तक ये सरकारें ऐसी ही खेलती रहेंगी। कभी चंडीगढ़ के नाम पे, कभी SYL के नाम पे, कभी कोई आवाज़ उठा रहा है उस पर नशे लगाओ जेल में डाल दो,
ऐसे ही करती रहेंगी जब तक आपकी एकता नहीं बन जाएगी। ये बताइए, उनको तो जमानत बोले तो जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि एक देशद्रोही का साथ दिया था, फिर जमानत कैसे मिल गई? उनको जमानत इसलिए मिल गई कि कोई सबूत है ही नहीं सरकार के पास, एक भी सबूत नहीं सरकार के पास। यही भगवंत मान साहब जो बोल रहे थे ना कि करोड़ों रुपए मिलते हैं उसको एक बच्चे का उनके नज़दीक लगाने के, कहाँ गए भाई वो पैसा? किसी को मिला क्या आज तक? वो पैसा मिला हो तो बताना भगवंत मान साहब। अरबों खरबों रुपया मिलना था, कहाँ गया? अब पंजाब का पैसा तो खर्च किया जा रहा है, कभी गुजरात चुनाव में, कभी कहीं, कभी ये वो चड्डी पड्डी की उसमें शादी में खर्च किया जा रहा है। पंजाब को इतना कर्जवान बना के चले जाएगा ये कि समझ में नहीं आएगा। वो जो दिल्ली बैठा है ना बढ़िया, वो खेल जाएगा पूरे पंजाब के साथ। पंजाब देखना कितना कर्जवान हो जाएगा। पंजाब का पैसा दूसरी स्टेटों में खर्च किया जा रहा है, ये आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। जब तक आंखें नहीं खोलोगे ना आपकी समझ में नहीं आए। आपको आए दिन एक नए पंगे दंगे में उलझा देते हैं, कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया, फिर लोग लग जाते हैं उसी के खिलाफ धरना लगाने पे। एक साथ इकट्ठे हो जाओ। आपका मोर्चा लगा हुआ है, मोहल्ली मोर्चा लगा हुआ है जो बंदी सिंह गोगिरियाई वाला, वहाँ पे आप इकट्ठे हो सकते हो। वहाँ पे इकट्ठे और बैठ कर अपनी बातचीत करोगे। 2024 का चुनाव आ गया, इनको वोट की चोट नहीं दी जाएगी ना जब तक, तब तक इनकी समझ में नहीं आएगी। ये नेता जो होते हैं ना वोट की चोट को समझते हैं वो, नहीं तो ये इंसान को इंसान नहीं समझते। ऐसे ही आपस में कभी SYL के नाम पर लड़वाएंगे, कभी चंडीगढ़ के नाम पर लड़वाएंगे। तैयारी पूरी कर दी है ना, वो दिल्ली बैठे ना जो बढ़िया, उसने फुल तैयारी कर दी है आपको आपस में लड़वाने की। या SYL के नाम पर लड़वाएंगे या चंडीगढ़ के नाम पर, जबकि ना चंडीगढ़ पंजाब के पास, ना हरियाणा के पास, ना SYL पर पंजाब का अधिकार, ना हरियाणा का अधिकार। लेकिन लड़वाने के लिए आपको SYL और चंडीगढ़, ये दो चीज़ें इनके पास बहुत अच्छी है। किसी के बहकावे में ना आके चंडीगढ़, भाई हरियाणा पंजाब को एक कर दो, चंडीगढ़ और SYL का मसला खत्म। खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा? खत्म खत्म अपने आप बैठ कर लेंगे निपटारा। भाई कौन से को लेनी राजधानी ले ले, जिसको पानी लेना है ले लो, बैठ कर आराम से लोग बैठ कर कर सकते हैं ना। लेकिन ये नेता आपको लड़ाएंगे, लड़ाएंगे आपको, ये याद रखना। जैसे 40 साल तक है ना डुगडुगी बना दी ना हरियाणा की, तमिल भाषा हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। कभी कोई तमिल बोलता देखा हरियाणा में? बोल सकता है कोई? बोल के दिखा दो। या वो बंसीलाल के खानदान में से कोई बोल के दिखा दो, तमिल ही बोल के दिखा दो। तो ये नेता बहुत आगे तक की सोच कर लड़वाते हैं। और हरियाणा और पंजाब खासकर इन दो सूबे वतन की नज़र रहती है कहीं ये एक ना हो जाए, क्योंकि अगर ये एक हो गए ना फिर हाथ नहीं आते ये, फिर तो बड़े बड़े को झुका देते हैं, झुका देते हैं। इस बात को सभी मानोगे आप। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। सरबत्ता भला मांगने वाली कौम को जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है ना, दिखा दो ना। जमानत मिल गई है, खुद मीडिया दिखाओ, ये जमानत मिल गई दोनों बीवियों को, दिखाओ कि उनके ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया। नहीं दिखाएंगे, ये आप लिख लेना इस चीज़ को। ये जब तक हाँ कुछ गलत काम होगा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा देंगे, अच्छाई कभी नहीं दिखाएंगे, याद रख लेना आप इस चीज़ को।